Welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are doing fine. In this video lecture, we are gonna to discuss the part 4th of the question paper that was asked in AIIMS Bhubaneswar Radiographer Recruitment Paper 2023. So guys, without wasting time, let's get right into the video. Today's question number first is, what is the purpose of using a gantry in CT and MRI machines? सीटी और एमआरआई मशीन्स में गैंट्री को यूज करने का पर्पस क्या होता है? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। टू क्रिएट ए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर द पेशेंट, टू एडमिनिस्टर कंट्रास्ट एजेंट्स, टू पोजीशन द पेशेंट, टू हाउस द इमेजिंग components and rotate around the patient. So its right answer is option number D, that is to house the imaging components and rotate around the patient. तो जो गैंट्री होती है सीटी और एमआरआई मशीन्स में, उसका पर्पस, उसका काम यही होता है कि जो इमेजिंग इक्विपमेंट्स हैं उनको हाउस करना प्लस रोटेट करना अराउंड द पेशेंट। नाउ let's move to question number second. Question number second is, how should you dispose of old fluorescent light bulbs containing mercury? तो जो ओल्ड फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स होंगे जिनमें मर्क्यूरी भरा हुआ होगा, तो उनको आप कैसे डिस्पोज करोगे? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज bury them in the backyard, break them to release the mercury and recycle the glass, throw them in the regular trash, recycle them at a designated hazardous waste facility. So it is appropriate answer is option number D, that is recycle them at a designated hazardous waste facility. So its right answer is option number D. Now let's move to question number third. Question number third is, which recent trend in radiography allows for minimal or non-invasive tissue sampling using image guidance? यानी इसने कुछ इमेजिंग टेक्निक्स दी हैं, हमें ये बताना है कि रेडियोग्राफी का रीसेंट ट्रेंड कौन है जिसे हम मिनिमल और नॉन इन्वेसिव टिश्यू सैंपलिंग करते हैं बट बाय यूजिंग द इमेज गाइडेंस। सो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। percutaneous image guided biopsy, photographic recording, direct visualization, radiographic palpation. Clearly its right answer is option number A, that is percutaneous image guided biopsy. तो जो percutaneous image guided biopsy है ये एक ऐसा recent trend है रेडियोग्राफी में जिससे हम मिनिमल या नॉन इन्वेसिव टिश्यू सैंपलिंग कर सकते हैं यूजिंग द इमेज गाइडेंस। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is, with the advent of digital tomosynthesis, what unique advantage does this imaging modality offer compared to conventional 2D mammography? यानी जब डिजिटल टोमोसिंथेसिस की एडवेंट हुई, यानी जब डिजिटल टोमोसिंथेसिस वजूद में आया, तो इसका कौन सा ऐसा यूनिक एडवांटेज है डिजिटल टोमोसिंथेसिस का जो कि हमें ऑफर करता है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल 2D मैमोग्राफी? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। allows for multiplanar 3D reconstruction from a single rotational sweep of the X-ray tube, enables real-time imaging for interventional procedures, enhances resolution by using a higher dose of radiation, provides functional information similar to MRI. Its right answer is allows for multiplanar 3D reconstruction from a single rotational sweep of the X-ray tube. तो ये डिजिटल टोमोसिंथेसिस का एक यूनिक एडवांटेज है कि ये मल्टीप्लानर 3D रिकॉन्स्ट्रक्शन को अलो करता है जिसमें सिंगल रोटेशनल स्वीप होता है एक्सरे ट्यूब का। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is, what is the purpose of the gel applied to the skin during an ultrasound scan? जब हम अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं तो उस दौरान हम क्या करते हैं, हम जेल अप्लाई करते हैं स्किन पे, विच इज कॉल्ड एज द एक्वास्टिक कपलिंग जेल। तो उसका पर्पस क्या होता है? टू नंब द एरिया, टू इम्प्रूव साउंड वेव ट्रांसमिशन, टू कूल द स्किन, टू क्लीन द skin. So its right answer is
टू इम्प्रूव द साउंड वेव ट्रांसमिशन। देखिए गाइस, अगर हम बात करेंगे ना, तो ईयर जो होता है, ईयर ऑफर्स द मैक्सिमम रिफ्लेक्शन टू द अल्ट्रासाउंड वेव्स। तो लेकिन जब मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होगा या अल्टीमेटली सारे वेव्स रिफ्लेक्ट होंगे पेशेंट के बॉडी से, तो कोई ट्रांसमिट नहीं होगी, तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। दैट इज वाई वी हैव टू अप्लाई द जेल ऑन द स्किन in order to improve the sound wave transmission. So it is appropriate answer is option number second, to improve the sound wave transmission. Now let's move to question number 6. Question number 6 is, when disposing of electronic waste, e-waste, like old computers and smartphones, what is the best approach? जब हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिस्पोज करेंगे, जैसे ओल्ड कंप्यूटर्स या स्मार्टफोन्स को, तो बेस्ट अप्रोच क्या रहेगा? ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। लीव देम ऑन द कर्ब फॉर पिकअप, रिसाइकल देम at an e-waste recycling facility, donate them to local charity, bury them in the backyard. Its right answer is recycle them at an e-waste recycling facility. हमें चाहिए कि उनको हम रिसाइकल करें ई वेस्ट रिसाइकलिंग फैसिलिटी पे। सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is, what does the Doppler ultrasound technique primarily measure? जो Doppler ultrasound technique है वो मेजर क्या करती है? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। ब्लड प्रेशर, बोन डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी in the heart, blood flow velocity. Clearly its right answer is option number 4, that is the blood flow velocity. Doppler ultrasound primarily measures the blood flow velocity. Now let's move to question number 8. Question number 8 is, which ultrasound technique involves the injection of a contrast agent to enhance the imaging of blood vessels and organs? कौन सी अल्ट्रासाउंड टेक्निक ऐसी है जिसमें क्या होता है कि कंट्रास्ट एजेंट को इंजेक्ट किया जाता है ताकि ब्लड वेसल्स और ऑर्गन्स को इमेज हम कर पाए, उनकी इमेजिंग एनहांस हो जाए। ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, contrast enhanced ultrasound, transvaginal ultrasound, 3D ultrasound. So its right answer is option number B, that is the contrast enhanced ultrasound, CEUS, contrast enhanced ultrasound. Now let's move to question number 9. Question number 9 is, what type of coil is used in microphones to convert sound waves into electrical signals? कौन सी कॉइल माइक्रोफोन्स में हम यूज करते हैं ताकि साउंड वेव्स कन्वर्ट हो जाए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। इट इज पैनकेक कॉइल, प्रिट्जेल कॉइल, डायफ्राम कॉइल, टेस्ला कॉइल. Its correct option is option number C, that is the diaphragm coil. Now let's move to question number 10. Question number 10 is, which specialized radiographic technique is commonly used for evaluating bone density and diagnosing osteoporosis? इनमें से कौन सी रेडियोग्राफिक टेक्निक हम कॉमनली यूज करते हैं बोन डेंसिटी को इवेलुएट करने के लिए और ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोस करने के लिए? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। अल्ट्रासाउंड बोन डेंसिटोमेट्री, सिंगल फोटोन एब्जॉर्प्शियोमेट्री, ड्यूअल एनर्जी X-ray absorptiometry, quantitative computed tomography. So clearly its right answer is dual energy X-ray absorptiometry, that is the DEXA scan. तो जो रेडियोग्राफिक टेक्निक हम कॉमनली यूज करते हैं बोन डेंसिटी को इवेलुएट करने के लिए और ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोस करने के लिए, दैट इज द DEXA scan, dual energy X-ray absorptiometry. Now let's move to question number 11. Question number 11 is, what is the most common material used for X-ray detector screens in radiographic cassettes? कौन सा मोस्ट कॉमन मटेरियल एक्सरे डिटेक्टर स्क्रीन्स में यूज किया जाता है रेडियोग्राफिक कैसेट्स में? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, फास्फर. क्लियरली इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द फास्फर. Now let's move to question number 12. Question number 12 is,
What is the term for the process of converting X-ray energy into visible light in radiographic screens? तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं जिसमें हम एक्सरे एनर्जी को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करते हैं रेडियोग्राफिक स्क्रीन्स में? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। रेडियो ल्यूमिनेसेंस, केमिल्यूमिनेसेंस, फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस। सो जब हम क्या करते हैं एक्सरे एनर्जी को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस। सो इट इज राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्लोरेसेंस। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज What is the purpose of a Geiger-Müller counter in radiation monitoring? रेडिएशन मॉनिटरिंग में गीगर मूलर काउंटर का पर्पस क्या होता है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। टू रिकॉर्ड पेशेंट हिस्ट्री, टू डिटेक्ट एंड मेजर आयोनाइजिंग रेडिएशन, टू मॉनिटर रूम टेम्परेचर, टू मेजर पेशेंट रेडिएशन एक्सपोजर। जो गीगर मूलर काउंटर है, गीगर मूलर काउंटर इट इज एन एरिया मॉनिटरिंग डिवाइस, so it is used to detect and measure ionizing radiation. So its right answer is option number B, that is to detect and measure ionizing radiation. Now let's move to question number 14. Question number 14 is which principle involves the use of a linear accelerator to deliver high energy radiation beams for कैंसर ट्रीटमेंट? इट इज द क्वेश्चन फ्रॉम रेडियोथेरेपी। तो किस प्रिंसिपल में इन्वॉल्व होता है लीनियर एक्सेलरेटर जो कि हाई रेडिएशन बीम्स को डिलीवर करता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। टोमोग्राफी, रेडियो सर्जरी, रेडियो बायोलॉजी, रेडियो फार्माकोलॉजी। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द रेडियो सर्जरी। Now let's move to question number 15. Question number 15 is what is the role of a medical dosimetrist in radiation therapy? एक मेडिकल डोजिमेट्रिस्ट का रोल क्या होता है रेडिएशन थेरेपी में? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। मैनेजिंग हॉस्पिटल फाइनेंसेस, एनालाइजिंग रेडियोग्राफिक इमेजेस, प्लानिंग रेडिएशन treatment doses, administering radiation treatments. So its correct option is option number C, that is planning radiation ट्रीटमेंट डोजेज। जो एक मेडिकल डोजिमेट्रिस्ट होता है उसका रोल यही होता है कि वो रेडिएशन ट्रीटमेंट डोजेज को प्लान करता है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16. Question number 16 is in a hospital's radiation therapy department, who is responsible for ensuring that radiation treatment machines are properly calibrated? तो एक हॉस्पिटल के रेडिएशन थेरेपी डिपार्टमेंट में कौन सा शख्स रेस्पॉन्सिबल हैं किस लिए? ताकि वो एंश्योर करता है रेडिएशन ट्रीटमेंट मशीन जो होती हैं दे आर प्रॉपरली कैलिब्रेटेड, उनमें प्रॉपर कैलिब्रेशन होती है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। रेडिएशन थेरेपिस्ट्स, रेडियोलॉजिस्ट्स, रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट्स, मेडिकल फिजिसिस्ट्स। सो इट इज राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द मेडिकल फिजिसिस्ट्स। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17. Question number 17 is which of the following imaging modality does not use ionizing radiation? इन imaging modalities में कौन सी ऐसी imaging modality हैं जिसमें ionizing radiation use नहीं होती है? PET scan, CT scan, MRI, fluoroscopy. So clearly without doubt it's करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एमआरआई। एमआरआई में मैग्नेटिक फील्ड का यूज होता है, आरएफ पल्सेस का यूज होता है, वहां पे कोई आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज नहीं होती हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, दैट इज what device is commonly used to measure ionizing radiation exposure especially for personnel working in radiation areas? कौन सा डिवाइस हम कॉमनली यूज करते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन एक्सपोजर को मेजर करने के लिए, एस्पेशली उन रेडिएशन एरियाज में जहां पे पर्सनल काम करते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। अल्ट्रासाउंड मशीन, magnetic resonance imaging machine, Geiger Müller counter, X-ray tube. So clearly its right answer is option number C, that is the Geiger Müller counter. तो Geiger Müller counter एक ऐसा डिवाइस है जो कि मेजर करता है आयोनाइजिंग रेडिएशन एक्सपोजर को
especially for the personnel working in the radiation areas. So this was the part fourth of the question paper that was asked in AIIMS Bhubaneswar Radiographic Recruitment 2023. I hope guys you enjoyed the session. Thank you.